So basically we've always been talking about the aim के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, basically हम ये कर रहे हैं कि the aim of the study is to see whether free contact traditionally trained elephants can be trained to participate in a trunk washing by using positive reinforcement. याद रखी जाए कि हम लोग क्योंकि positive reinforcements की बात बचपन से करते आ रहे हैं स्टडी के अंदर, और हम लोगों ने इसके मेन कॉन्सेप्ट्स में भी पढ़ा है कि it is to use, it is something that we want to, the researcher wants to use in order to identify whether ये positive reinforcement method क्या हमारे participants को, जो कि हमारे elephants हैं, क्या ये उन लोगों को जो है वो एक बेहतर जो है तरीके से कोई चीज़ सिखा सकता है कि नहीं. Now, so over here what are we doing? We are using the positive reinforcement method to train participants that are elephants in order to do what? In order to take part in the trunk washing behavior. और नंबर 2 हमारा एम है to investigate whether using secondary positive reinforcement training would be effective in elephants in Nepal to participate voluntarily in a trunk washing to aid the testing for tuberculosis. सेकेंड एम हमारा है कि क्या हम लोग, अब इसी बात है, हम लोगों ने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मेथड इस्तेमाल करना है सिखाने के लिए, लेकिन उसको किसके थ्रू हम सिखा रहे हैं? हमने पिछली बार भी ये बात करी थी, वी आर डूइंग दिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ हमारा सेकेंडरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थेरेपी टेक्निक. सो क्या हम लोग, ये सेकेंड हमारा एम है कि क्या ये प्रोसेस विल बी अ गुड फिट फॉर एलिफेंट्स और नॉट, बिकॉज याद रखिएगा इससे पहले हम लोगों ने बात करी है कि दैट दिस मेथड वाज अप्लाइड ऑन एंड वाज यूज्ड एंड वाज अप्लाइड टू प्राइमेट्स बिफोर, बट उसके अलावा इस मेथड को हम लोगों ने किसी और चीज़ के अंदर इस्तेमाल नहीं किया. ऑलराइट, फिर हमेशा ये टिप याद रखिएगा दैट एम अपने आप खुद वर्ड्स में इस्तेमाल कर लेंगे, लिख लेंगे तो आपके लिए आसान होगा. यू विल नॉट हैव टू रिमेंबर एंड रटिफाई ऑल ऑफ दिस, विच आई डू नॉट रिकमेंड कि यू रटिफाई एनीथिंग. आई वॉन्ट यू गाइज टू बी एबल टू राइट एवरीथिंग इन योर ओन वर्ड्स. रिसर्च मेथड्स की अगर और डिज़ाइन की बात करें तो दिस वाज अ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड अ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन. व्हेनेवर वी से स्ट्रक्चर्ड एंड अ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, वी से कि यहाँ पे हमारे पास प्री डिफाइंड लिस्ट होगी, प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स होंगे जिनको हम देख रहे होंगे. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे क्योंकि हम एक बिहेवियर सिखा रहे हैं, इट हैज़ टू हैव अ प्री डिसाइडेड, अ written down checklist of behaviors that basically the researcher will be looking at whether the elephants learned these behaviors or not, and involving a small group of elephants living in captivity who were trained over a period of week. The researcher watched the elephants before in response to a specific stimulus and used a behavioral checklist to record the elephant's responses as a percentage pass. This means that the study can also be described as a structured observation. Of course, हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा है कि if, for example, the elephant is carrying out a behavior, so what percentage perfection does that elephant have? And of course, यहाँ पे हम लोग वो percentage perfection through behavioral checklist के through identify कर रहे हैं. Controlled observation, when we have certain elements within the environments that are controlled by the researcher. Here the participants or the elephants were not from the wild, of course. They were all kept in captivity from birth. These elephants were from captivity. They were living in stables and their environments was not disturbed while the study was conducted. So the environment that they were living in was already being controlled in regard to their routine, food, play and time, etc. Important part हमारे पास ये है, the findings of the researcher are not generalizable as there is a very small group that we are going to be looking over here. हमारे पास जो participants है वो बहुत छोटा है, sample size बहुत छोटा है. इसके अलावा हमारे पास when we say that the study is structured observation, we say that there will be quantitative data, तो ये हमारा एक positive point भी है इस study के हवाले से. When we talk about sample, this study includes 5 female elephants,
तो हमारे पास एक गाइनोसेंट्रिक रिसर्च जो गाइनोसेंट्रिक हमारे पास जो है वो डेटा आ रहा है। ये गाइनोसेंट्रिक डेटा क्यों है? बिकॉज वेन एवर देर इज ओनली फीमेल पार्टिसिपेंट्स वी गोइंग टू से कि ये गाइनोसेंट्रिक डेटा है। if we do not have a gynocentric if we have a lot of male क्या कहते हैं participants, then we say कि हमारे पास एंडोसेंट्रिक डेटा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फीमेल्स हैं सारे एलिफेंट्स, तो हम लोग कह रहे हैं गाइनोसेंट्रिक है। जिसके अंदर से 4 जुवेनाइल्स थी और एक एडल्ट एलिफेंट था। जो जुवेनाइल्स थी वो 5 to 7 years के थे और जो एडल्ट था वो 50 years की थी। और ये सारे नेपाल के स्टेबल्स के अंदर ही रहते थे। The elephants were selected by staff at the stable using the following criteria. Remember, हम लोगों ने ये नहीं करा कि हमारे जो हैंडलर्स हैं इन एलिफेंट्स के, जो इन एलिफेंट्स के साथ रहते हैं, इनकी साफ सुथराई, इनको देखना, इनको ग्रेजिंग कराना, इनकी तबीयत वगैरह, जो एक इंसान जो कहते हैं ना कि एक रखवाला होता है, अ पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस एलिफेंट, हमने उनकी जजमेंट्स को फॉलो किया। एंड विच इज़ वाई वी क्रिएटेड अ criteria, an inclusion criteria that was basically being followed by our researcher. They had a docile nature, मतलब calm elephants जो थे उनको हम लोगों ने पार्ट बनाया। They were not pregnant या were not nursing. They did not have any calf. उनका कोई बच्चा नहीं था छोटा जिनको उनको नर्स कराना पड़ता था। ये 2 क्राइटेरिया थे। अगर वो काम नहीं है तो हम उसको नहीं पार्ट बनाएंगे। अगर उसका कोई बच्चा है या वो प्रेग्नेंट है, बच्चा देने वाली है, देन वी आर नॉट गोइंग टू मेक दिस एलिफेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च। दे हैड अ विलिंग महूटा, दैट मीन्स द हैंडलर, जो उसका रखवाला है, जो उसका टेक केयर करता है। इफ दैट पर्सन इज नॉट विलिंग टू टेक पार्ट इन दिस रिसर्च, वी आर नॉट गोइंग टू मेक दिस एलिफेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च। Prior to the study, they had been trained using traditional methods and in free contact. All these elephants who were chosen by the researcher were trained prior to the research in a traditional way using punishments. इनको हम लोगों ने punishments के थ्रू पहले भी सिखाया है। ये वो elephants होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद when we say free contact, we mean that the elephants were not at all in any way restricted. उनको किसी भी तरह से हम लोगों ने restrict नहीं किया था, because यहाँ पे हम लोग SPR का effectivity जो है वो नहीं देख पाएंगे। because SPR के अंदर हम लोग restrict करेंगे हमारे elephants को, time bound करेंगे in order to learn a certain behavior. अगर वो पहले से ही time bound होने के आदी होंगे, then that means that it is going to affect their ability to learn. वो ज़्यादा जल्दी learn कर लेंगे because they are inhabituated of being barred or being restricted. Whereas यहाँ पे सारे जो elephants थे, कोई भी जो है वो किसी भी वे में restrict नहीं किया गया था according to time, according to anything else. And that is how हम लोगों ने इसकी effectivity को check किया। They had never been exposed to SPR training before. इससे पहले उन लोगों ने secondary positive reinforcement technique नहीं देखी हो इन elephants ने, तो उन elephants को ही हम लोगों ने पार्ट बनाया। फिर the participants of the study were selected through the opportunity sampling method, because there was those who were present at the disposal of the researcher, and those elephants were selected only. जो वहाँ पे मौजूद थे, who were there at the stable, who were present, whose mahutas were present, handlers were present, सिर्फ उन्हीं लोगों को हम लोगों ने ये जो है वो अपॉर्चुनिटी दी। नाउ इसके ऊपर यू कैन गेट अ वेरी जनरल क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब हाउ फेगन रिक्रूटेड द सैम्पल ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी बाय फेगन एट अल। ठीक है, तो ये स्टडी आपकी ये वाला सवाल बन सकता है। इसके लिए आपने यही सारे इंक्लूजन क्राइटेरिया जो ये मैंने लिखा हुआ है, इस इंक्लूजन क्राइटेरिया को ही एक्सप्लेन करना है। Now we had grazing sessions, we had stable sessions. Grazing and stable sessions हम सबको पता है क्या है। grazing sessions है जहाँ पे हम लोगों का पार्टिसिपेंट और हमारा जो एलिफेंट है वो 7.5 आवर्स के लिए जो है वो टोटल डे के अंदर ग्रेजिंग कर रहा है। उसके टाइमिंग्स है 5 AM से लेके 7 AM एक टाइम है, उसके बाद 10:30 AM से लेके 4 PM एक और टाइम है जहाँ पे वो ग्रेजिंग कर रहा होता है। स्टेबल सेशंस होते हैं जहाँ पे वो ग्रेजिंग करने के बाद लाके बांध दिया जाता है विद अ फुट चेन, जो कि उसको एक तकरीबन 6 to 8 feet लॉन्ग
चेन होती है जो कि हमारा एलिफेंट को एक मूवमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है, और उसकी लेग या फुट से या तो सिंगल लेग या तो डबल दोनों लेग से उसको बांध दिया जाता है. सो एवरी टाइम वी आर गोइंग टू से कि हम लोगों ने ट्रेनिंग देनी है, तो ये सारी ट्रेनिंग इसकी स्टेबल टाइम्स के अंदर होगी, क्योंकि स्टेबल टाइम्स जो होते हैं कि जो स्टेबल सेशंस हैं उसके अंदर ये एलिफेंट कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबल में आके बांध दिया जाता है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द डे ही इज़ इन द स्टेबल ओनली. हस्बेंड्री कंडीशंस हम सब ने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, लेट्स रिविजिट इट. हस्बेंड्री मीन्स के लिविंग कंडीशंस कहती हैं. वी कैन लिंक दिस टू एनिमल एथिक्स एंड गाइडलाइंस. हम लोगों की यहाँ पे बहुत अच्छी हस्बेंड्री कंडीशन थी. डाइटरी जो है वो मेनली हमारी डाइट जो है वो हमारे एलिफेंट्स को बहुत अच्छी दी जा रही थी, जिसमें ग्रास और दाना दोनों दिया जा रहा था. वाइल ग्रेजिंग they had access to the river water and but water otherwise was not provided outside of training protocol. So husbandry conditions हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत उनको properly रखा गया था. Now let's talk about the procedures over here. In this study the training method used the SPR, जो हमको पता है क्या है. SPR के लिए हम लोगों ने प्राइमरी रीइंफोर्सर क्या बनाया था. प्राइमरी रीइंफोर्सर हम लोगों ने बनाया था चॉप्ड बनाना, जो कि कोई बायोलॉजिकल नीड पूरी कर रहा है भूख की. रिमेंबर हम लोगों ने बात करी थी कि प्राइमरी रीइंफोर्सर इज बेसिकली सम स्टिमुलाई दैट इज फुलफिलिंग व्हाट एनी बायोलॉजिकल नीड. सो हम लोग कहते हैं प्राइमरी रीइंफोर्सर हमारा क्या है, मेन रीइंफोर्सर है, रिवॉर्ड है. इसके बाद सेकेंडरी रीइंफोर्सर हम लोगों ने विसल बनाया था. सेकेंडरी रीइंफोर्सर है. ट्रेनिंग टुक प्लेस ड्यूरिंग इंडोर सेशंस, जो कि हमारे स्टेबल सेशंस थे, फ्रॉम 7:30 AM to 10 and 4 to 7 PM. तो ये हम लोगों ने टोटल ट्रेनिंग सेशंस यहाँ पे इनको after the second grazing session and during the stable time हम लोग उनको ट्रेनिंग दिया करते थे. The trainer conducted the sessions with the mahuta. The mahuta was present over there, but the mahuta was not allowed to say or indicate or do anything regarding the training. उसको हम लोगों ने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पर्पसेस के लिए रखा था कि फॉर एग्जाम्पल इफ द एलिफेंट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल द माहूटा कैन एक्चुअली कंट्रोल द एलिफेंट एंड द एलिफेंट डज नॉट हार्म एनीवन. नो एलिफेंट वेंट मोर देन 2 days विदाउट ट्रेनिंग. तो हम लोगों ने 2 दिन से ज़्यादा किसी भी एलिफेंट को ट्रेनिंग के बगैर नहीं रखा. हम लोगों ने अगर एलिफेंट का मूड नहीं था हम लोगों ने पहले दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन लेकिन हम किसी भी हालत में इस एलिफेंट को ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व करेंगे. सही है. ये अगेन एक कंट्रोल था जो कि हम लोगों के रिसर्चर्स ने अप्लाई किया था. Let's move forward. The goal of the training was to teach the elephants to voluntarily perform the trunk washing behavior in several steps, actively moving their trunks in response to a cue. Controls क्या है? The mahutas did not speak or say or even signal the elephants during the training sessions. Did the elephants go through training every day? No, but the elephants did not go without training for 2 days. हर दिन ट्रेनिंग नहीं करते थे, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं था कि 2 दिन स्ट्रेट विदाउट ट्रेनिंग चले गए. नहीं, ऐसा नहीं था. हम लोगों ने 2 दिन के बाद तीसरे दिन फौरन उसको ट्रेनिंग करवाई. The sequence of behaviors that formed the successful trunk wash that needed to be taught to the elephant was as following. So याद रखिएगा हम लोगों ने ट्रंक वॉशिंग बिहेवियर एज इन ऑल और पूरा एक साथ नहीं सिखाया. हम लोगों ने उसको 6 स्टेप्स में तोड़ा था. वो 6 स्टेप्स क्या है? नंबर 1, प्लेस द एंड ऑफ द ट्रंक इन द हैंड ऑफ द ट्रेनर. Number 2, allow the trainer to insert saline solution, plain sterile water into the trunk. Number 3, lift the trunk up so that liquid base तक पहुंच जाए आपकी trunk के. Number 4, hold it so that hold the liquid in the base of the trunk. Number 5, lower the tip into the bucket. And number 6, blow. ये 6 हम लोगों ने जो है वो 6 steps में इसको तोड़ा था so that हम इसको सिखा सकें. Now याद रखिएगा, describe the sequence of training behavior that formed a successful trunk wash that needed to be taught to the elephant. This is another 4 marker that can be created through these steps.
नाउ हम लोगों ने आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द मार्कर रिवॉर्ड रिलेशनशिप एलिफेंट्स वर टॉट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स. नाउ जब हम लोगों ने एलिफेंट को बनाना और विसल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करवा दी, लिंक क्रिएट करवा दिया, उसके बाद हम लोगों ने कुछ तरीके इस्तेमाल किए थे. वो तरीके क्या थे? नंबर 1 जिसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया था इन ऑर्डर टू मेक आवर टू बेसिकली गेट परफेक्शन आउट ऑफ आवर एलिफेंट्स. सबसे पहला था कैप्चर. अगर कोई भी बिहेवियर मुझे सिखाना है तो उसके लिए मुझे कोई बिहेवियर को कैप्चर करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने डॉग को सिटिंग सिखा रहा हूँ तो जब मैं सिट बोलूंगा, मेरा डॉग लेट से पूरा सिट नहीं होता, आधा सिट हो जाता है, तो मुझे इसके ऊपर भी उसको एक प्राइमरी रीइंफोर्सर देना पड़ेगा. दैट इज मुझे उसको एक ट्रीट देनी पड़ेगी, मुझे उसको बिस्किट देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इससे वो ये लर्न करेगा कि जब ये माँ सिट बोलता है, या ये टीचर जो मेरा टीचर है, मेरा मालिक जो है, वो जब सिट बोलता है, देन व्हाट डू आई हैव टू डू. मैं हल्का सा बैठा, उसने मुझे बिस्किट दिया. जब मैं नहीं बैठ रहा था तो मुझे उसने बिस्किट नहीं दिया. दैट मीन्स इफ आई वॉन्ट अ बिस्किट आई नीड टू सिट डाउन. तो मैंने कैप्चर जो है वो किया है. नाउ कैप्चर के अंदर हम बिहेवियर को परफेक्शन के लिए नहीं जाते, हम जैसा तैसा बिहेवियर हमारा पार्टिसिपेंट दिखा रहा है, हम उसके ऊपर उसको एक रिवॉर्ड दे देते हैं. लेट्स रीड दिस. So capture is a technique, it is a good way to begin training of any animal for a behavioral for any behavior that is naturally done. So for example, जैसे ही मेरा डॉग जो है वो बैठेगा, मैं उसको ट्रीट दे दूंगा, और ट्रीट देने से क्या होगा, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा कि मैं जब बैठा तो उसने मुझे ट्रीट दिया. दैट मीन्स वेन एवर आई वॉन्ट टू ट्रीट आई नीड टू सिट. ऑलराइट, सो वी एक नेचुरली अकरिंग बिहेवियर के ऊपर हम लोग ट्रीट देके या रीइंफोर्सर देके उस बिहेवियर की अकरेंस को इंक्रीज कर देते हैं. दैट इज नोन एज कैप्चरिंग. Let's move forward. Let's go to lure. Lure क्या है? When dealing with behaviors that aren't natural for an animal, the lure technique can be employed. In this method, a reward is strategically placed to guide the animal into a desired body position. So again, obviously बात है, अगर हम elephants की यहाँ बात करें, मैं चाहता था कि elephants जो है वो saline solution जो है वो मुझे insert करने दें. अब वो सेलिन सोल्यूशन इंसर्ट करने क्यों देंगे? बिकॉज दैट इज नॉट अ नेचुरल थिंग, राइट? ऐसा तो नहीं है कि बचपन से उनके जो नाक में सेलिन सोल्यूशन डाला जाता था ना, तो इट्स नॉट समथिंग दैट इज नेचुरल एंड द एलिफेंट इज नॉट लाइक इट एज वेल. सो अगेन लूर का मेथड इस्तेमाल होता है जहां पे मैं क्या करता हूं, मैं एक है ना क्या बोलते हैं, चॉप्ड बनाना अपने हाथ में रखता हूं और मेरा एलिफेंट को दिखाता हूं. तो एलिफेंट क्या करता है, मेरे हाथ के अंदर अपनी ट्रंक रख देता है और मैं नीचे से उस ट्रंक के अंदर इंजेक्शन के थ्रू सेलिन सोल्यूशन इंसर्ट कर देता हूं. लेकिन उसको साथ साथ एलिफेंट को जब वो इंसर्ट हो जाता है तो फिर उसको प्राइमरी रीइंफोर्सर भी दे देता हूं, चॉप्ड बनाना भी दे देता हूं. सो नाउ रिमेंबर, लूर इज एनी बिहेवियर दैट इज नॉट नेचुरल फॉर द एलिफेंट. उसको सिखाने के लिए मैं कोई प्राइमरी रीइंफोर्सर का इस्तेमाल करता हूं और वो एक ऐसी पोजीशन में रखता हूं कि जहां पे हमारा वो जो बिहेवियर हम उसको करवाना चाह रहे हैं वो हमारा एनिमल उस बिहेवियर को कर ले. लेट्स रीड दिस. This reward body position becomes the starting point for working on the desired behavior. In other words, we will set the position of the animal's behavior in a way that is going to be what we actually want. फिर आ जाता है शेपिंग. शेपिंग के अंदर क्या होता है कि क्योंकि हमारा बिहेवियर स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल उसने एलिफेंट ने ट्रंक मेरे हाथ में रखना शुरू कर दी, अब मैं उसको बकेट के अंदर गाइड करूंगा क्योंकि असल बिहेवियर क्या है, मैं तो चाहता हूं कि वो बकेट के अंदर ब्लो करे. सो अगेन मैं शेपिंग का इस्तेमाल करूंगा. शेपिंग क्या है? वंस द ट्रेनिंग बिगिंस विद आइदर द कैप्चर और लूअर टेक्निक, it frequently progresses with shaping. So अगर हमने क्या इस्तेमाल किया होगा, या तो हमने लूअर का इस्तेमाल किया होगा. ये कब इस्तेमाल किया होगा लूअर टेक्निक का? जब हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा बिहेवियर है जो कि नेचुरली हमारा एलिफेंट या हमारा एनिमल जो है वो कर ही नहीं सकता, तो एक ऐसी पोजीशन क्रिएट कर देता हूं मैं यूजिंग अ रिवॉर्ड, नेचुरल रिवॉर्ड, अ प्राइमरी रिवॉर्ड, कि वो एलिफेंट खुद ही उस पोजीशन में पहुंच जाता है, उस बिहेवियर में पहुंच जाता है
एंड जब उसको रिवॉर्ड मिलता है तो वो उसके चांसेस ऑफ रीडूइंग दीज बिहेवियर्स विल इंक्रीज। या तो फिर मैं कैप्चर का इस्तेमाल करूंगा। कैप्चर क्या है? जब हमारा बिहेवियर ऐसा है जो कि नेचुरली भी परफॉर्म किया जाता है हमारे एलिफेंट से या हमारे एनिमल से, और जैसे ही वो नेचुरली उसको करेगा, आई विल बी गिविंग दिस एनिमल अ नेचुरल और प्राइमरी reinforcer, and after taking this primary reinforcer the chances of this behavior are going to increase। इसके इन दोनों के बाद अगर मैं इन दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करता हूँ बिहेवियर को या ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए, तो उसके बाद उस बिहेवियर को परफेक्ट करने के लिए मैं शेपिंग का इस्तेमाल करता हूँ कि इस शेपिंग के थ्रू आई एम बेसिकली गोइंग टू मेक माई एनिमल लर्न द परफेक्ट बिहेवियर दैट आई वॉन्ट टू सी। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, टास्क क्या है देखें। यूजिंग दीज ट्रेनिंग मेथड्स एलिफेंट्स वर ट्रेन्ड टू डू द फॉलोइंग बिहेवियरल टास्क सेपरेटली। सो याद है हम लोगों ने बिहेवियरल ट्रेनिंग की बात की थी, हम लोगों ने एक बिहेवियर को मल्टीपल बिहेवियर्स के अंदर तोड़ दिया था, मल्टीपल शॉर्ट बिहेवियर्स में, इन ऑर्डर टू मेक आवर पार्टिसिपेंट और द एनिमल लर्न द होल बिहेवियर इन स्मॉल बिहेवियरल पार्ट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही किया है। सबसे पहले trunk here, the elephant had to place the trunk on the hand of the trainer. Number 2, trunk up, elephant had to pick the trunk up. Number 3, bucket, elephant aims at the bucket and the elephant is taught to aim here, put the trunk in the bucket. Blow, blow is basically जहाँ पे वो blow in the bucket so that the sample or the mucus or the sputum is collected. Steady, नो नॉट पिक्चर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोग हमारा जो है वो ट्रंक को स्टेडी रखेंगे फ्यू मिनट्स के लिए, दैट विल इंडिकेट द एन एनिमल दैट द बिहेवियर इज कंप्लीट। लेट्स लुक एट दिस बिहेवियरल टास्क एंड मेथड थ्रू विच द एलिफेंट्स वर टॉट समथिंग। सही है। क्वेश्चन भी बनता है हमारा इसके ऊपर, एक्सप्लेन 1 or 2 ऑफ द बिहेवियर्स दैट वर टॉट to the elephant in the study by Fagan et al. Now remember हमारे पास टोटल 5 जो है वो बिहेवियर्स हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने शॉर्ट बिहेवियर्स के अंदर ब्रेक किया था एक ट्रंक वॉश को, और हमने उन एलिफेंट्स को सिखाया था इन ऑर्डर फॉर आवर एलिफेंट्स टू लर्न ट्रंक वॉशिंग। ऑलराइट, सो अगेन याद रखिएगा, अब हम लोग यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा बिहेवियर किस मेथड के थ्रू हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिखाना। तो ट्रंक हियर हम लोगों ने लूअर के थ्रू किया था, दैट मीन्स हम लोगों ने किसी ऐसी पोजीशन में लाना था उसका जिस पोजीशन में वो नॉर्मली नहीं आता एलिफेंट। तो हम लोगों ने एक बेट इस्तेमाल किया, दैट इज चॉप्ड बनाना, प्राइमरी रीइंफोर्सर, इसको इस्तेमाल किया और हमने रखा एक पोजीशन में जहां पे एलिफेंट ने खुद ही अपनी ट्रंक लाके हमारे हाथ में रख दी। फिर ट्रंक अप, इसको हम लोगों ने अगेन लोअर एंड शेपिंग का इस्तेमाल किया था। लोअर किया हम लोगों ने, हमने चॉप बनाना ऊपर रखा, सही है, उसके सर के ऊपर, और हमने उसकी ट्रंक को ऊपर उठवा लिया, और जैसे ही उसने ट्रंक ऊपर उठा लिया हम लोगों ने उसको बनाना दे दिया। तो उसने समझ लिया कि ओके आई नीड टू व्हेनेवर आई डू दिस आई एम गोइंग टू गेट अ रिवॉर्ड फॉर इट। फिर बकेट के लिए हम लोगों ने अगेन लोअर का इस्तेमाल किया, चॉप बनाना को हम लोगों ने बकेट के अंदर प्लेस कर दिया, और हमारे एलिफेंट ने जैसे ही देखा चॉप बनाना वहां पे, उसने खुद ही अपनी ट्रंक बकेट में ले गया। फिर ब्लो क्या है, कैप्चर और शेपिंग। कैप्चर और शेपिंग कैसे कि वेटिंग फॉर नेचुरल एक्सेल एंड रिवॉर्ड दैट। सो याद रखिएगा, कैप्चर क्या होता है, कोई नेचुरल रिस्पॉन्स को हम कैप्चर करते हैं, हम उसको देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ही वो होता है हम लोग उसके बाद एक रिवॉर्ड दे देते हैं। एंड देन स्टडी, इसको शेपिंग के थ्रू किया, एक्सटेंडेड द हम लोगों ने उस जो है क्या बोलते हैं एलिफेंट को कहा कि आप पैरेलल अपना जो है वो उसको ट्रंक को रखो ग्राउंड के पैरेलल, सही है, सो दैट इंडिकेट्स कि हमारा ये बिहेवियर अब खत्म हो चुका है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग three additional tasks were introduced, but later on उनको हम लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया था, एज वो हम लोगों के किसी भी ट्रंक वॉश के अंदर कोई स्पेसिफिक पार्ट रोल प्ले नहीं कर रहे थे। तो ऑफिशियली हम लोगों के पास क्या थे, ऑफिशियली हमारे पास 3 और बिहेवियर्स थे, तो टोटल हमारे पास 8 बिहेवियर्स थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि उनका हमारी ट्रंक वॉशिंग बिहेवियर में कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा, तो हम लोगों ने उसको ड्रॉप कर दिया।
After the elephants mastered individual behaviors, each task was linked to a simple one syllable cue. One syllable, for example, हम लोग बंदर वालों को देखते हैं, we see monkey shows. Monkey shows में क्या होता है कि वो उस बंदर का जो behavior होता है, whatever that monkey is doing is not basically learned, या वो खुद ही ऐसे शुरू नहीं हो जाता. There is a cue, उसको एक इंडिकेशन दी जाती है, उस इंडिकेशन के बेसिस के ऊपर वो कुछ ना कुछ चीज कर रहा होता है. तो यहाँ पे हम लोगों ने यही किया, हम लोगों ने हर बिहेवियर को, दैट मीन्स यहाँ पे 5 बिहेवियर्स है स्मॉल, उन 5 के 5 बिहेवियर्स को हम लोगों ने एक वन सिलेबल क्यू, एक वन सिलेबल प्रॉम्प्ट के साथ जो है वो पेयर कर लिया. एन एसोसिएशन वॉज क्रिएटेड विद नो मीनिंग इन इंग्लिश और नेपाल. इस वन सिलेबल का कोई मीनिंग नेपाली के अंदर या इंग्लिश के अंदर नहीं था, बिकॉज अगर होता तो हो सकता है कि हमारा एलिफेंट अगर उस वर्ड से पहले से एक्सपोज्ड होता तो वो नहीं सीख पाता. सो विच इज वाई वी चोज अ सिलेबल दैट हैड नो मीनिंग इन इंग्लिश एंड नो मीनिंग इन नेपाली. Ensuring it had no significance for the elephants or the mahutas. This was basically done because they did not want to create any external variable. Meaning is that the elephant had heard this earlier, and if they had attached the meaning to it, it would maybe distort their behavior and learning. ये याद रखिएगा. So हम लोगों ने एक external stimulus को कंट्रोल करने की कोशिश करी है. Once all the behaviors were set, the trainers combined them in short sequences using a technique called behavioral chaining. ये हमने already ऊपर पढ़ चुके हैं. This method involves correctly performing all the first behavior, giving the animal the chance to do the next one right, and receiving a reward. Initially, separate tasks were paired, starting with bucket and blow. They were combined into longer sequences until they formed an entire trunk washing behavior. So initially, they had created short or small behaviors. Completing one meant that they would then remember the other. So जिसको कहते हैं ना रट्टा लगाना, एक वर्ड बोलो बाकी सब बच्चा खुद बोल देता है. तो इन्होंने इसी तरह से कुछ करवाया था. They actually made these elephants rote learn the behaviors. When one behavior was conducted or performed by the mahuta with the help of the trainer, not the mahuta, with the help of the trainer, the rest was performed on its own by the elephant or the learner. Now again, इसके ऊपर हमारा एक सवाल बनता है 5 मार्क का. In the study by Fagan et al., Elephant Learning, describe how the elephants were trained to do each of the basic behavioral tasks. मैंने इसका आंसर भी लिखा हुआ है, so please go through it. अच्छा जी, let's move forward in the procedure. The procedure for the behavioral chaining was as follows. The elephant was rewarded for blows made towards any part of the bucket. रिमेंबर हम लोगों ने शेपिंग का इस्तेमाल करना है. पहले हम लोग उसकी ब्लो, वो कहीं भी ब्लो करें हम लोग उसको रिवॉर्ड देते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो ब्लोइंग बिहेवियर बार बार करें. एंड हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको रिवॉर्ड सिर्फ तभी देने लगते हैं जब वो करीब से करीब ब्लो करता है बकेट के, एंड एट द एंड वो जब ब्लो करता है ओनली इन द बकेट, सिर्फ तभी उसको रिवॉर्ड मिलता है. So the elephant was rewarded for any blows made towards any part of the bucket. This was then shaped so that rewards only occurred with blows aimed at the center at the center and the bottom of the bucket only. ठीक है, वही बात कि हम लोग first we are going to only give them rewards for blowing, but slowly and steadily हम उसको shape कर देंगे that we only give them rewards when they blow towards the bucket, and then in the end हम सिर्फ और सिर्फ तभी reward दे रहे होंगे जब वो blow करेगा in the center and in the bucket. Separate behaviors are paired in a range of combinations and were practiced in multiple behavioral sequences, working towards the full trunk wash. The trainer used a marker
जो कि विसल था, at appropriate stages of the sequence, but the primary reinforcer of banana was only ever given at the end of the correct sequence. So remember हम लोग markers का इस्तेमाल करते थे to identify, to give this elephant a pairing that yes ये marker इस्तेमाल हो रहा है, ये whistle इस्तेमाल हो रही है, that means मुझे अभी मिलने वाला है मेरा प्राइमरी रीइंफोर्सर जो कि बनाना है, लेकिन बनाना सिर्फ तभी दिया जाता था जब पूरा बिहेवियर प्रॉपर्ली परफॉर्म कर दिया जाए. The final stage was to chain together the full trunk wash sequence of trunk here, short and steady, trunk up, long, steady, back, a bucket, then blow. So ये हम लोगों के जो ऊपर 5 हम लोगों ने मेथड्स देखे हैं, इन पांचों मेथड्स का इस्तेमाल करके, इन पांचों बिहेवियर्स का इस्तेमाल करके हम लोगों ने हमारे पार्टिसिपेंट्स जो कि एलिफेंट्स हैं उनको ट्रंक वॉशिंग बिहेवियर सिखाया. यूज ऑफ सिरिंज भी किया गया था यहाँ पे. और यूज ऑफ सिरिंज बेसिकली क्यों किया गया था? बिकॉज अगेन हम लोगों ने ट्रंक के अंदर सेलीन सोल्यूशन जो है वो इंसर्ट करना था. The syringe was introduced using a desensitization method. Desensitization method होता है जहाँ पे मैं slowly and gradually अपने participants को किसी चीज़ से जिससे वो डरते हैं उससे expose कराता हूँ in order for them not to be scared of that object. Gradually introducing the syringe, this was done as you do not want to scare the elephant away. In addition, the trainer also introduced the use of syringe to the trunk here position. This was done incrementally using a desensitization method over a series of repetitions of the whole trunk wash sequence. The syringe was gradually brought closer to the elephant. It would be touching the trunk, then inserted in the trunk, then inserted with certain amounts of fluid जो कि 1 ml से लेके 15 ml तक था. और हम लोगों ने तब तक अपना ml बढ़ाते रहे of insertion of saline solution जब तक वो 60 ml तक retain करना नहीं सीख गया हमारा elephant. सही है. So हम लोगों ने syringe को slowly and gradually introduce कराया था during the process of learning different behaviors. Why? Because we did not want the elephant to be scared. All elephants were started with 0.9% saline as a sample medium. They were then transitioned to plain water for training purposes ताकि saline solution ज़ाया ना हो. और ट्रेनिंग के अंदर हम लोगों ने उनको सिर्फ पानी इंसर्ट किया, whereas फाइनल हम लोग जब उनको टेस्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने saline solution डाला. To avoid the elephants drinking the saline solution water, they were offered drinks before each training session. So हमने ये देखा था ऊपर भी कि ट्रेनिंग सेशन के दरमियान हम लोगों ने उनको पानी दिया था. क्यों दिया था? ताकि वो उसको प्यास ना लगे, और प्यास नहीं लगेगी तो वो saline solution जो इंसर्ट किया जाएगा उसको पेट में नहीं उतार लेगा, वो उसको वापस ब्लो आउट करेगा. To avoid the elephant from drinking the saline drinks were offered before each training session. One elephant preferred drinking saline solution and would drink the saline solution after rejecting the water. So was switched to a water solution for the behavioral task. So again there was this one elephant जिसको saline solution बहुत मज़ेदार लग गया था और वो saline solution पी जाता था. तो हम लोगों ने उसको क्या किया, उसको हम लोगों ने ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर ही स्विच कर दिया फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस, क्योंकि वो पी जाता था और वो उसको ब्लो आउट नहीं करता था. There were no time limit put on any stage of training process. It was determined by the success of the individual elephant, meaning that the training plan varied according to the elephant's needs. हर एलिफेंट का अपना टाइम फ्रेम था जिसके अंदर उनको ये ट्रेनिंग कराई गई, और उसी अपने टाइम फ्रेम के अंदर ये एलिफेंट्स जो है इनके ऊपर कोई ऐसा नहीं था कि वो 2 सेशंस के अंदर किसी भी हालत में मुझे इसको सिखा देना, ऐसा नहीं था. द एलिफेंट्स को टेक देयर ओन स्वीट टाइम. ठीक है जी. सो इसके बाद हमारे पास डेटा कलेक्शन एंड जो है वो रिजल्ट्स का वो रह गया है. लेट्स कंप्लीट दिस. डेटा कलेक्शन क्या है हमारी? सेशन टाइम
we noted each and every session time that each and every participant elephant was taking. During training sessions also we timed each and every minute that the elephant was taking in order to learn the behavior. So during training sessions, an assistant carefully measured the duration beginning from the first cue to the end of the elephant's response, the final cue. If a session could not be accurately timed, perhaps due to time limited staff, any missed data or any missed time would be incorporated in another training session. तो हम लोगों ने यहाँ पे हर एलिफेंट को इक्वल टाइम प्रोवाइड किया. ऐसा नहीं था कि किसी एलिफेंट को 30 मिनट्स दिए, किसी एलिफेंट को 45 मिनट्स दिए, नहीं, ऐसा नहीं था. Each elephant was given a specific time. Each elephant had equal time in order to learn the behaviors. So training सबकी equal हो रही थी, equal time frames दी जा रही थी. फिर number of offers, how many times did they have to ask the elephants to do a behavior. इसको हम numbers of offer कह रहे हैं. ये भी हम लोगों ने जो है वो डेटा में कलेक्ट किया था. In every session an assistant counted how many times the elephants were prompted to perform a specific behavior, making it as the number of offers for the behavior. This could include instances during desensitization and early stages of learning a new task, even when no particular response was anticipated and before the verbal cue had been associated with the behavior. So हम लोगों ने ये क्यों देखा, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें कितनी दफ़ा हमारे एलिफेंट्स को समझाना पड़ा, सिखाना पड़ा, क्यों देना पड़ा in order for them to do a behavior, in order for them to perform a specific behavior after they have learned a behavior. Then number 3 हमारे पास performance test थे. All the elephants were first trained and then tested for the behaviors starting from session number 10. So हम लोगों ने 10 sessions तक सारे participants जो कि elephants हैं उन लोगों को training दी. 10 sessions के बाद हम लोगों ने after every 5 sessions उनकी एक टेस्ट लिया. सो इसको इस तरह समझें कि हम लोगों ने 10 सेशंस तक हमारे पार्टिसिपेंट्स को, एलिफेंट्स को टेस्ट नहीं किया ऑन द बिहेवियर्स. हमने 10 सेशंस उनको दिए. एवरी पार्टिसिपेंट और एवरी एलिफेंट विल गो थ्रू दीज 10 सेशंस. आफ्टर 10 सेशंस हम लोगों ने उनका एक टेस्ट लिया. अगर वो टेस्ट में पास हो जाते हैं, अगर वो सारे बिहेवियर्स को एक साथ खुद ही परफॉर्म कर लेते हैं एक क्यू देने के बाद, तो हम कहते हैं कि हमारे एलिफेंट ने लर्न कर लिया. लेकिन अगर वो नहीं लर्न कर पाता, वो कोई बिहेवियर गलत करता है, तो हम उसको वापस से 5 सेशन देते हैं. वो 5 सेशन के बाद हम लोग फिर एक सेशन हम लोग उसका टेस्ट लेते हैं. अगर वो पास हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो वापस से 5 सेशन देंगे और फिर टेस्ट लेंगे. अगर पास हो गया तो ठीक, नहीं तो वापस से 5 सेशन देंगे और फिर टेस्ट करेंगे. लेकिन 10 सेशंस तो हर एलिफेंट को मिल रहा है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Starting from 10 session, a test was given to each elephant roughly every 5 sessions. So, allowing for some flexibility, tests were administered until after the 10 sessions because the researchers wanted the elephants to grasp the training approach during the initial sessions before learning the basic task. During each test, elephants were assessed on the behaviors they had been taught with a passing score of 80%. मतलब 80% behavior trunk wash अगर वो सही कर लें तो हम कहते हैं कि हमारा elephant पास हो जाएगा. If an elephant hadn't learned a behavior yet, it was tested and the elephant received a default score of 0 in the records. The determination of whether a behavioral response during the test was considered passing was subjective to the test taker as well. So again हमारा टेस्ट टेकर के ऊपर भी ये सब्जेक्टिव है. अगर मैं बहुत स्ट्रिक्ट टेस्ट ले रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्ट ट्रेनर हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं 90% पे भी नहीं पास करता हूँ, तो अगेन दिस वाज सब्जेक्टिव ऑल्सो. Researchers chose not to test the behaviors until 10 sessions
The elephants were assessed on behaviors taught, that is 80%, अगर वो सही करता है तो हम उसको passing समझ लेते थे. फिर the quality and the behavior was again decided by the trainer. अगर trainer कहता है कि नहीं मुझे pitch perfect 98% समझो, behavior अगर वो सही करेगा trunk washing का तब मैं उसको पास करूंगा, then that was also subjective. What do the results tell us? We are going to do the results in the next and final class. ठीक है, होपफुली रिजल्ट्स हम लोग कल खत्म करके then we'll move on to a new study. Alright, so I hope this was beneficial for everyone. Take care जी, खुदा हाफिज.